નમસ્કાર, જીએસટીવીની ડિબેટમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું આનંદ શુક્લા। પુણેની અંદર મંચ ઉપર એક પોલિટિકલ પ્રેમ જોવા મળ્યો। આ પોલિટિકલ પ્રેમ એ ભારતની રાજનીતિના બે દિગ્ગજો વચ્ચેનો પ્રેમ હતો અને આ પ્રેમને કારણે જે સત્તાધારી એનડીએ છે એની અંદર એક રીતે ઉત્સાહનો માહોલ છે અને બીજી બાજુ ઇન્ડિયા જે મહાગઠબંધન છે વિપક્ષોનું, એમાં ઘણા નેતાઓના પેટમાં તેલ રેડાયું। આનું કારણ હતું વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને એનસીપી ચીફ શરદ પવાર વચ્ચેની ઉષ્મા। શરદ પવારે પહેલા તો સ્મિત સાથે નરેન્દ્ર મોદીને આવકાર્યા। જ્યારે તેઓ સુશીલ કુમાર શિંદેને મળવા માટે આગળ વધ્યા ત્યારે તેમની પીઠ પણ થપથપાવી અને તિલક પુરસ્કારથી તેમને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા। આ આખા મામલાની અંદર જે વસ્તુ સામે આવી છે એ સામે એ આવી છે કે શરદ પવાર અને પીએમ મોદી વચ્ચેનો આ જે પોલિટિકલ પ્રેમ તંતુ છે એ પોલિટિકલ પ્રેમ તંતુના 2024ની લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા કેવા રાજકીય અર્થો નીકળી શકે અને આ જ મુદ્દે ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે ડોક્ટર અનિલ પટેલ, ભાજપના પ્રવક્તા। આપણી સાથે મુંબઈથી શ્રીકાંત દેશપાંડે પોલિટિકલ એનાલિસ્ટ છે, ધનંજય કુમાર પોલિટિકલ એનાલિસ્ટ છે, એ ટૂંક સમયમાં આપણી સાથે જોડાશે। આપણે ડોક્ટર અનિલભાઈ પટેલથી શરૂઆત કરીએ। અનિલભાઈ, આજે જે પુણેની અંદર મંચ ઉપર પોલિટિકલ પ્રેમ જોવા મળ્યો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને શરદ પવાર વચ્ચેનો, આ પોલિટિકલ પ્રેમ એ એના ઉપર શિવસેના ઉદ્ધવ બાલાસાહેબ ઠાકરેના મુખપત્ર સામનાની અંદર સવાલ કરવામાં આવ્યો કે શું ઇન્ડિયાની પહેલી વિકેટ એ પડી ગઈ છે? તો હું તમને સીધો સવાલ પૂછું કે શું વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઇન્ડિયા મહાગઠબંધનની આ પહેલી વિકેટ એ પાડી દીધી છે? આનંદભાઈ, બે વિષયો છે। એક વિષય છે નરેન્દ્રભાઈનું જે રીતે ઉષ્માભર્યું સ્વાગત થયું અને આજે કાર્યક્રમ જે હતો એ બિન રાજકીય કાર્યક્રમ હતો અને આ બિન રાજકીય કાર્યક્રમમાં શરદ પવારે નરેન્દ્રભાઈનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત તો કર્યું જ, પરંતુ જે તિલક એવોર્ડથી સન્માન કર્યું એ તિલક એવોર્ડ દર વર્ષે કેટલાય વર્ષોથી અપાય છે, લગભગ 1990થી અપાય છે અને એના કરતા હતા શરદ પવારશ્રી છે। આ શરદ પવારે નરેન્દ્રભાઈનું જનસેવા, રાષ્ટ્રીય સેવામાં યોગદાનના કારણે એમનું આ નામ નક્કી કર્યું। ઓફકોર્સ 2024ની ચૂંટણી આવી રહી છે એટલે એના ઇન્ડિકેશન, અર્થ અનર્થ ગમે તે હોઈ શકે, પરંતુ દેશની રાજનીતિમાં જે રીતે નરેન્દ્રભાઈ સિનિયરોનું સન્માન કરે છે, શરદ પવાર હોય કે દેવગૌડાજી હોય પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી, એ નરેન્દ્રભાઈની પ્રકૃતિ છે અને નરેન્દ્રભાઈના શરદ પવાર સાથેના સંબંધો, ઓફકોર્સ રાજનીતિક વિચારધારા જુદી જુદી હોઈ શકે, મૂળભૂત તો શરદ પવાર કોંગ્રેસમાંથી છૂટા પડેલા નેતા છે, પરંતુ નરેન્દ્રભાઈ જ્યારે ચીફ મિનિસ્ટર હતા અને જ્યારે ચીફ મિનિસ્ટર નહોતા ત્યારના એમના શરદ પવાર સાથેના જે સંબંધો છે એ વિશેષ પ્રકારના સંબંધો છે। આજે કાર્યક્રમ એ બિન રાજકીય હોવાથી મને લાગે છે કે એના કદાચ અર્થઘટન કરીએ ન કરીએ એ જુદો વિષય છે, પરંતુ આજ ભારતીય જનતા પાર્ટી એનડીએની સરકાર 2017માં આજ નરેન્દ્રભાઈએ શરદ પવારને દેશનું સેકન્ડ લાર્જેસ્ટ જે સન્માન કહેવાય પદ્મ વિભૂષણ, એ સન્માનથી નવજીત કર્યા હતા શરદ પવારને। ત્યારે પણ કોંગ્રેસ અને અન્ય વિપક્ષોએ બુમરાણ મચાવી મૂકી હતી, પરંતુ નરેન્દ્રભાઈનો કોઈપણ પ્રકારનો વિન્ડિક્ટિવ રાજનીતિથી ઉપર ઉઠીને જે લોકોનું દેશના વૃદ્ધિ અને વિકાસમાં જેનું યોગદાન છે એનું સન્માન કરવું, એને યોગ્ય સમયે માન સન્માન આપવું, આ એમની પ્રકૃતિ રહી છે।
પણ આનંદભાઈ બીજો જે મુદ્દો છે રાજનીતિક મુદ્દો, મને લાગે છે કે જે વિપક્ષનું ગઠબંધન છે, INDA, આઈ પછી ફૂલ સ્ટોપ, એન પછી ફૂલ સ્ટોપ, 4 તો ફૂલ સ્ટોપ છે, અને આ 4 ફૂલ સ્ટોપ તો ખાલી એના નામમાં છે. એ એવું કહે છે કે ભાજપને ફૂલ સ્ટોપ લગાવવું જોઈએ એટલે આ ફૂલ સ્ટોપ લગાવે. સ્વાભાવિક છે કે એમની મહત્વાકાંક્ષા હોય, કારણ કે આ એક ભ્રષ્ટાચારીઓનું ગઠબંધન છે. મૂળ તો એક બાબુ બાબા અને 12 ભ્રષ્ટાચારીએ પટણામાં શરૂ કરેલું આ ગઠબંધન છે. અત્યારે જે 26 પોલિટિકલ પાર્ટીઓ વિપક્ષની જોડાઈ છે, આનંદભાઈ તમે 26 સ્પેશિયલ 26 નામનું પિક્ચર પણ જોયું હશે, અને એમાં કેવી રીતે દેશને અને સામાન્ય નાગરિકોને અને વેપારીઓને લૂંટવાનું કામ એ સ્પેશિયલ 26 કર્યું છે, એ આપણે જોયેલું જ છે. અને આ પ્રકારનું પિક્ચર યુપીએ હતું. અનિલભાઈ, સવાલ અહીંયા એ છે કે કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા રહેલા દિવંગત ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ પ્રણવ મુખર્જી હોય, એ પણ આપણી સાથે આ જે પ્રણવ મુખર્જી છે એ પણ આરએસએસના કાર્યક્રમમાં જાય અને એ વખતે વિવાદ થાય. એવો જ વિવાદ અત્યારે શરદ પવારના મંચ ઉપર, મોદીના મંચ ઉપર બંને જણા જોડે હોય એનાથી વિવાદ ઉભો થયો છે. તો આને તમે કેવી રીતે જોયો? એમાં મંચ લોકમાન્ય તિલક સંસ્થાનનું હતું મંચ. શરદ પવાર એના કરતા હતા છે, એમણે નરેન્દ્રભાઈને આમંત્રિત કર્યા હતા. હવે આ બંને લોકોનું મંચ પર સાથે હોવું અને નરેન્દ્રભાઈને આ સન્માન અપાવવું તો સ્વાભાવિક છે કે શિવસેના, ઉદ્ધવ અને કોંગ્રેસના પેટમાં તો ખૂંચવાનું જ છે. અને પૃથ્વીરાજ ચૌહાણે તો આ કાર્યક્રમ ન થાય અને કોંગ્રેસે આ કાર્યક્રમ ન થાય એના અનેક ધમપછાડા કર્યા. અનિલભાઈ, આપને રોકવા માંગીશ. આપણી સાથે શ્રીકાંત દેશપાંડે જોડાયા છે, રાજકીય વિશ્લેષક. નમસ્કાર શ્રીકાંતજી. હા, શ્રીકાંત દેશપાંડે જોડાય પહેલા આપણે અનિલભાઈ આપની વાત આગળ મૂકો. એટલે હું જે કહેવા માંગતો હતો કે કોંગ્રેસના પેટમાં તો સ્વાભાવિક દુખવાનું છે, કારણ કે જે નબળા લોકોનું ગઠબંધન છે એના કારણે નંબર 1 એક તો બધાને એકબીજા ઉપર અવિશ્વાસ છે. નંબર 2 એકબીજાના ખભા ઉપર ચડીને રાજનીતિક સફળતા મેળવી છે. નંબર 3 દરેક પોલિટિકલ પાર્ટીનો પોતપોતાનો પ્રધાનમંત્રીનો કેન્ડિડેટ છે. નંબર 4 દરેક પોલિટિકલ પાર્ટી પોતે પોતાની સીટો છોડવા માટે તૈયાર નથી. પોતે જે રાજ્યોમાં પ્રભાવી છે ત્યાં અન્ય કોઈને સીટ આપવા માટે તૈયાર નથી. તો આ પ્રકારનું એક હવાહવાઈ ગઠબંધન છે વિપક્ષનું. નામ બદલવાથી એનું કેરેક્ટર બદલાતું નથી. નામ બદલવાથી એના કામની જે ઓળખ ઊભી થઈ હતી 2014 પહેલા, એ દેશની જનતામાં બદલાઈ નથી. યુપીએના જે કંઈ ઓળખ ઊભી થઈ હતી, એ ભ્રષ્ટાચાર હોય કે પોલિસી પેરાલિસિસ હોય, જે રીતે રાહુલ ગાંધીએ મનમોહન સિંહનો અધ્યાદેશ ફાડી નાખ્યો હતો, જે રીતે ઈડી, સીબીઆઈ અને દેશની સંવિધાનિક સંસ્થાઓએ આમના શાસન દરમિયાન જે ગાડીઓ જે ભ્રષ્ટાચાર કર્યા છે, જે ગેરરીતિઓ કરી છે, એની ઉપર ગાડીઓ બાંધ્યો છે, એનાથી બચવા માટે ઈડી સીબીઆઈ થી બચવા માટેનું આ એક ટેમ્પરરી એક નાનું ગઠબંધન ઊભું થયું છે. અને એ પોતે શક્તિશાળી નથી, એટલા માટે તો કોંગ્રેસ અને શિવસેના આ પ્રકારના આક્ષેપો કરે છે. શરદ પવારે આનંદભાઈ એટલું કહ્યું અને એમણે કહી દીધું કે હું કોઈને આ કાર્યક્રમ પહેલા કોઈ પણ વિપક્ષના નેતાને મળીશ નહીં. અનિલભાઈ રોકવા માંગીશ આપને. શ્રીકાંત દેશપાंडे આપણી જોડે જોડાયા છે. नमस्कार श्रीकांत जी, आपका स्वागत है जीएसटी में. नमस्कार. सबसे पहले तो मैं आपको ये सवाल पूछना चाहता हूं कि अदानी पर एक तरफ राहुल गांधी निवेदनबाजी कर रहे हैं और दूसरी तरफ शरद पवार और अजीत पवार कह रहे थे कि जो विवाद है, ये विवाद में राहुल गांधी के साथ वो सहमत नहीं थे. अब जबकि दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में लाया गया, उस वक्त शरद पवार पीएम मोदी के साथ एक ही मंच पर दिखाई दिए थे. तो आपको लगता है I.N.D.I.A में से एक डॉट को पीएम मोदी अगले कुछ दिनों में समाप्त कर देंगे?
ऐसा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक जो धड़ा है, जो उनके भतीजे हैं अजीत पवार, वो बिना पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने गठबंधन की सरकार में वो शामिल हो गए हैं। तो उस वक्त महाराष्ट्र के अंदर जो है तो एक ऐसा माहौल बना था कि कहीं शरद पवार जी का ही इसमें कुछ हाथ है क्या। तो ये इसका कारण ये है कि पवार जी की जो राजनीति है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। हालांकि महाराष्ट्र के अंदर जो पिछले 6 दशक से राजनीति में कार्यरत है और वो बीटेबल नेता है, आज तक वो कोई चुनाव नहीं हारे हैं, उनका ये रिकॉर्ड रहा है। महाराष्ट्र के बहुत बड़े क्षत्रप नेता हैं, लेकिन ऐसा है कि उनकी राजनीति के बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, आप उसका प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कांग्रेस और शिवसेना ठाकरे गठ जो है तो शरद पवार जी का विरोध कर रहे थे कि वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित न हो, क्योंकि एक मैसेज इससे ऐसा जा सकता है कि इंडिया के अंदर कहीं फूट तो नहीं पड़ रही, इंडिया मतलब जो गठबंधन बना हुआ है विपक्षी दलों का, उसमें कहीं फूट तो नहीं पड़ रही है, तो ये मैसेज न जाए इसलिए आपको नहीं जाना चाहिए, उनकी मांग थी। लेकिन शरद पवार जी चूंकि उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति ऐसी नहीं है और जो विपक्ष के साथ सहयोग जो है तो वो हो सकता है। साझा सहयोग का मतलब है कि आपको राजनीति के अलावा जो सहयोग हो सकता है वो हम जरूर करते हैं, हर चीज में राजनीति को लाना जरूरी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में अगर आप बोल रहे हैं कि शरद पवार जी जा सकते हैं तो ऐसी फिलहाल तो कोई संभावना नहीं है, क्योंकि पिछले 2 मई को उन्होंने इस्तीफा दिया था ये टटोलने के लिए कि संगठन जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का वो उनके साथ कितना है, क्योंकि उनको पहले से ही शायद ये पता हो गया था कि अजीत पवार जो है तो वो जा रहे हैं भाजपा के साथ, तो उससे पहले संगठन के रहेगा टटोलना कहते हैं उन्होंने किया कि पवार दिनों चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, ऐसा मुझे अभी नहीं लगता। जी जी जी, हमारे साथ धनंजय कुमार भी जुड़ चुके हैं। धनंजय कुमार जी, आपका स्वागत है जीएसटीवी में। धन्यवाद। एक ही मंच पर शरद पवार और मोदी का इस तरह से मिलना कि जब दिल्ली सर्विस बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा रहा हो उस समय इस तरह से मिलना, इसके पॉलिटिकल अर्थ क्या निकल सकते हैं और सामना में जो सवाल उठाए गए हैं उसको लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, शरद पवार को तो मंच पे आपने देख लिया, लेकिन क्या वहां सुशील कुमार शिंदे दिखे? वहां वो भी थे। सुशील कुमार शिंदे जो है कांग्रेस के बड़े नेता है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, भारत सरकार में वो जो है केंद्रीय गृह मंत्री रहे हैं, वो भी उस मंच पर थे। और जिस ट्रस्ट ने दिया है मोदी जी को ये सम्मान दिया है, तिलक सम्मान, उस ट्रस्ट में वो एक ट्रस्टी वो भी है। अब जो है एक दूसरी बात यह है कि शरद पवार जी को जिस तरह लेकर के बात की जा रही है, एक तो कयास जो है मुझे लगता है कि मीडिया द्वारा बनाया हुआ है, क्योंकि मीडिया को एक कुछ न्यूज आइटम चाहिए, खास करके जो मोदी मीडिया है उसको तो खास तौर पर चाहिए, और जो विपक्ष के जो लोग हैं उनको किस तरह से उनको लेकर के भ्रम फैलाया जाए, इंडिया जो बनाया गया है उसको लेकर के उनकी वो कोशिश होती है। लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ कि शरद पवार के ही एक बयान को ले लीजिए कि शरद पवार जी ने कहा था कि राजनीति में जो है तो संवादहीनता की स्थिति नहीं आनी चाहिए, मतलब संवाद होते रहना चाहिए। एक फिर मैं वाजपेयी जी की बात करूं, अटल बिहारी वाजपेयी अक्सर इस बात का जिक्र करते थे कि राजनीति मतभेद चाहिए, वो जरूरी है, वो सही है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। तो उसके पहले आप याद कीजिए, चंद्रशेखर हो, नरसिम्हा राव हो, वाजपेयी हो, सब किस तरह से आपस में मिलते थे, हंसते बतियाते दिखाई पड़ते, भैरव सिंह शेखावत हो। लेकिन जब मोदी जी आए हैं तब से एक अलग किस्म की राजनीति देश में की जा रही है, और वो राजनीति ये की जा रही है कि जो विपक्ष के लोग हैं वो हमारे दुश्मन है। विपक्ष के लोग दुश्मन नहीं है, विपक्ष के लोग भी इसी देश के हैं और उनको इसी देश के नागरिकों ने चुना है। जिन नागरिकों ने आपको चुना है उन्हीं नागरिकों में से उनको भी चुना गया है। समझिए, मेरे घर में 5 सदस्य हैं, तो 2 लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है, 2 लोगों ने कांग्रेस को भी वोट दिया है, एक ने एनसीपी को वोट दिया है। अलग अलग लोगों से वोट देता है, ऐसा तो है नहीं कि हर घर से सारे वोट मोदी जी को पड़ गए या सारे वोट कांग्रेस को पड़ गए। तो ये जो जिस तरह की राजनीति की जो परिभाषा कर रहे हैं ये धनंजय जी, जब राहुल गांधी अदानी का मुद्दा उठा रहे थे तब शरद पवार राहुल गांधी के साथ भी सहमत नहीं थे, और आज जब दिल्ली सर्विस बिल प्रस्तुत हो रहा था उस वक्त भी शरद पवार संसद में नहीं थे।
तो इसका अर्थ ये क्यों न निकाला जाए कि वो विपक्ष के साथ अभी दिख तो रहे हैं लेकिन है नहीं? नहीं, मैं इसको कहूंगा कि वो अलग किस्म की राजनीति है जो शरद पवार ही इस पे या एनसी के प्रवक्ता बेहतर बोल सकते हैं। मैं बोलूंगा एक पत्रकार होने के नाते कि इसको मैं कोई अलग तरीके से नहीं देख रहा हूं, क्योंकि महाराष्ट्र में वो दिया जा रहा है तिलक की बात है। अगर समझिए यहाँ नहीं होते और संसद में होते तो कई लोग ये सवाल उठाते कि इतना बड़ा सम्मान है, तिलक जो है महाराष्ट्र के बड़े नेता रहे और उनकी संस्था द्वारा ये सम्मान दिया जा रहा था और प्रधानमंत्री यहाँ थे और वो नहीं आए। तो प्रधानमंत्री नहीं गए संसद, तो इस पर तो कोई सवाल नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री को अवार्ड देना जरूरी था या संसद जाकर के मणिपुर पे बोलना जरूरी था? प्रधानमंत्री को अभी विपक्ष के नेता जितने हैं इंडिया के, खड़गे साहब बयान दे रहे थे, देखिए उसमें उन्होंने क्या कहा कि प्रधानमंत्री नहीं आए संसद। तो प्रधानमंत्री संसद क्यों नहीं आए? उनको क्यों नहीं आना चाहिए था? जब इतना महत्वपूर्ण बिल अगर पेश किया जा रहा था तो उनको भी होना चाहिए था। वो तो 8 से लेकर के 10 अगस्त तक जाएंगे ना? नहीं जाएंगे, अब कब जाएंगे, क्या करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो है एक देखिए ये अनुमान कयास कि उनके भतीजे उधर चले गए हैं पूछ करके तो ये लगाया जा सकता है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि अजित पवार जो है पिछले 2-3 मीटिंगों को कैंसिल किया, नहीं गए हैं, जरूरी मीटिंगों में नहीं गए। और आपको ये भी याद होगा कि जब शरद पवार से अलग हुए उसके बाद ये सारे मंत्री बनने के बाद फिर गए उनके पास, शरद पवार जी के पास, उनके पांव छुए, उनसे बातें की। क्योंकि क्यों ऐसा किया? क्योंकि उनके पास जो है बहुमत नहीं है और उनके मन में एक तनाव है अजित पवार जी और उनके साथी के मन में कि कहीं अयोग्यता वाला तलवार उनके सर पर न लटक जाए। धनंजय जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। श्रीकांत जी, आपको एक सवाल पूछ रहा हूं कि पीएम मोदी ने इस मंच से वीर सावरकर और तिलक जी की घनिष्ठता के बारे में बात की। हम जानते हैं कि शरद पवार जिस गठबंधन में है उस गठबंधन के नेता राहुल गांधी बार बार वीर सावरकर पर सवाल उठाते हैं, उनको माफी वीर कहते हैं। तो जो तिलक और वीर सावरकर की घनिष्ठता की बात की उन्होंने, तो ये बात करके पीएम मोदी ने एक तीर से बहुत सारे शिकार किए, ऐसा आपको नहीं लगता? नहीं, देखिए ऐसा है कि महाराष्ट्र के अंदर हालांकि कांग्रेस की ये भूमिका रही है कि वो वीर सावरकर जी के बारे में जो भी है उनके माफी वीर या कुछ और जो भी बयान है वो देते रहते हैं। उनकी जो पुस्तिका निकलती है महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, उसके अंदर भी ऐसा कुछ लिखा गया था। लेकिन अगर जहां तक आप शरद पवार जी की बात करते हैं तो शरद पवार जी ऐसे बयानों से कभी भी सहमत नहीं थे। इससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि आज जिस तिलक स्मारक समिति की ओर से सम्मान समारोह किया गया, प्रधानमंत्री जी को पुरस्कार दिया गया, उसी सम्मान समारोह समिति से शरद पवार एक लंबे अरसे हुए हैं। साथ ही सुशील कुमार शिंदे जो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता है, मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी इसी समिति के एक चयन समिति के मेंबर रहे और कई वर्षों से समिति के साथ जुड़े हुए हैं, तिलक स्मारक समिति के साथ। शरद पवार भी उसके मुख्य संरक्षक में से हैं, तो इसलिए उनका हक होना वहां पर लाजमी था। दूसरी बात रही ऐसी कि शरद पवार जी कभी भी सावरकर जी या फिर इस बारे में उन्होंने कभी ऐसी टिप्पणी नहीं की। पर राहुल गांधी को रोका भी नहीं ना, तो सावरकर राहुल गांधी को उन्होंने रोका भी नहीं ना। उन्होंने सार्वजनिक मंच से शायद राहुल जी के लिए कोई सलाह दी ना हो, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने ऐसी कोई बात जो है, क्योंकि पिछली बार उन्होंने एक बार बयान दिया था कि ऐसे बयानों से जो है कांग्रेस को बचना चाहिए, ये उनका ही वक्तव्य था। उन्होंने कहा कि इस तरह के जो बयान दिए जाते हैं महापुरुषों के बारे में, उस बयानबाजी से कांग्रेस को या उनके अध्यक्ष को बचना चाहिए। ये उनका अपना व्यक्तिगत निजी राय थी। देखिए, राजनीति के अंदर पवार जी एक मृदु राजनीति के रूप में जाने जाते हैं और वो सहसा जो है तो कोई ऐसा बयान नहीं करते जिससे कोई अपलाप हो या सत्य का विलाप हो या फिर जिससे कोई राजनीति खड़ी हो। ऐसे बयानबाजी से शरद पवार हमेशा से बचते आए हैं। तो शरद पवार जी ने हमेशा यही कहा है कि ऐसे बयानबाजी जो है वो उन्हें नहीं करनी चाहिए, ये उनका अपना वक्तव्य था। और दूसरा ऐसा कि शरद पवार जी सावरकर स्मारक ट्रस्ट जो है मुंबई के अंदर, तो उसको जब उसके जो भी प्रोग्राम्स हुए हैं उसमें कई प्रोग्राम्स में उन्होंने शिरकत की है और ये बात जाहिर है। उन्होंने सावरकर जी के पुतले का विमोचन भी जो है तो पुणे के अंदर किया था। तो ऐसी बातें हैं कि उनको मतलब
विचारधाराएं शायद उनकी सावरकर जी से मेल नहीं खाती हो, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो निश्चित आदर करते हैं और ये महाराष्ट्र के अंदर ये सभी लोग जानते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री के बयान से कोई विशिष्ट अर्थ निकाला जाए या फिर पवार के लिए ये कोई असहमति का मुद्दा हो, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है। અનિલભાઈ, જેને ગઈકાલ સુધી ભ્રષ્ટાચારી કહેતા હતા એ પાર્ટીને તોડી અને એ પાર્ટી માંથી આવેલા ડેપ્યુટી સીએમ હોય, એ પાર્ટીના જ ચીફ હોય, એ મંચ ઉપર નરેન્દ્રભાઈ મોદી વડાપ્રધાન તરીકે આ પ્રકારે જે એમનું ઉષ્માભેર સ્વાગત થાય, તો આ ભારતીય રાજકારણમાં આ કઈ પ્રકારની આ વૃત્તિ પ્રવૃત્તિ અને સંસ્કૃતિ છે એ સમજાતું નથી, એ કેવી રીતે એને જોઈ શકાય? आनंद जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि श्रीकांत जी ने बताया कि शरद पवार इज अनप्रिडिक्टेबल लीडर। बात सही है, शरद पवार इज अनप्रिडिक्टेबल लीडर बट मैच्योर लीडर। कुछ गोदी पत्रकारों को मालूम नहीं है कि नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ उनका संवाद पिछले 9 साल में बहुत बार हुआ है। व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र भाई का अपॉइंटमेंट लेकर शरद पवार जी 3 से 4 बार मिले हैं। देश के इश्यू पर, अनेक इश्यू पर बात भी हुई है, लेकिन जो एक गोदी पत्रकारित्व जो होती है उनको मालूम भी नहीं है कि 2017 में यही नरेंद्र मोदी जी थे, यही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार थी जिसने शरद पवार जी को देश का सर्वोच्च सम्मान 2nd नंबर का पद्म विभूषण का सम्मान दिया गया है। नरेंद्र भाई का संबंध जो मैच्योर लीडर्स है, मैच्योर अपोजिशन लीडर है, चाहे ये शरद पवार हो, देवगौड़ा जी हो और बहुत सारे हो, प्रणब मुखर्जी हो, ऐसे कई सारे लीडर्स हैं जिनके साथ उनका संवाद रेगुलर हो रहा है। कुछ गोदी पत्रकारों को ये मालूम नहीं है। और अब हम चर्चा कर रहे हैं कि एक मंच पर शरद पवार और सब शिंदे जी कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर थे, चीफ मिनिस्टर भी थे, तो सब लोग हाजिर थे। तो वहां पर एक नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम था, तो मोदी जी का सम्मान वो सम्मान के योग्य है इसलिए हुआ है। उसके और कोई अर्थ निकालना और उसमें लोकसभा में 7-8 दिन से हाजिर नहीं है, वो दोनों चीज को जुड़ना मुझे लगता है कि ये गोदी पत्रकारित्व का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और आपने जो प्रश्न पूछा, तो मुझे लगता है कि राजनीति में बहुत सारी संभावनाएं भी होती है। आज महाराष्ट्र की सरकार जब पहली बार शिवसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव गठबंधन में लड़ी थी, उद्धव जी को खुद को चीफ मिनिस्टर बनना था, तो शरद पवार और कांग्रेस का सपोर्ट लिया। कांग्रेस और शिवसेना की विचारधारा बरसों से 2 एंगल है, नॉर्थ और साउथ एंगल है, फिर भी साथ बैठे थे। तो ऐसे राजनीतिक संभावनाओं में बहुत सारे लोग साथ बैठते भी है। मुझे लगता है आज का जो मतलब ये जो कार्यक्रम हुआ है उसमें एक देश की राजनीति के लिए एक बड़ा संदेश भी है कि कुछ बातों के लिए, कुछ कार्यक्रमों के लिए देश के सीनियर लीडर्स जो मैच्योर लीडर्स हैं उन लोगों को साथ आना चाहिए। साथ बैठकर राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो सकती है, वो लोकसभा में एक अलग मंच भी हो सकता है, 2024 के चुनाव में भी अलग मंच हो सकता है, लेकिन हर एक बात को राजनीतिक एंगल से ढूंढना और हर एक बात को राजनीतिक एंगल के साथ जुड़ना मुझे लगता है ठीक नहीं है। ओके, धनंजय जी, आपको लग रहा है कि अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के इस मुलाकात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं प्रभाव पड़ेगा। और अभी जो भाई साहब बोल रहे थे उनकी बातों में थोड़ा सा और ऐड कर दूं। आप गौर कीजिए, सावरकर की का चित्र जो है इंदिरा गांधी ने संसद भवन में लगवाया था, आपको याद होगा। मैं बताऊं कि जो एक महाराष्ट्र प्राइड की बात की जाती है उसमें तिलक एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। जिसे शरद पवार के बारे में कहा उन्होंने कि जब सावरकर के बारे में राहुल गांधी ने बोला तो उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए। तो सावरकर भी महाराष्ट्र के थे, तिलक भी महाराष्ट्र के हैं। लेकिन मैं एक सवाल करूंगा आपसे, प्रश्न करूंगा अगर, कि गांधी आपके गुजरात के हैं, मोदी जी ने गांधी जी के बारे में क्या बोला जब संभाजी भिड़े ने उनकी माता पे कमेंट किया? मोदी जी ने क्या बोला? वो भाई साहब, ये कौन सी चर्चा डिस्कशन चल रहा है? नहीं, वो
वो अलग अलग चीज है। नरेंद्र भाई मोदी ने गुजरात में गांधी जी लेके जो किया है, आप आइए गुजरात में, मैं आपको दिखा दूं। गांधी आश्रम का डेवलपमेंट होगा, पोरबंदर में गांधी जी का जो जन्म स्थल था उसका डेवलपमेंट, यहाँ महात्मा गांधी के नाम पर कितना बड़ा कन्वेंशन सेंटर बना हुआ है। और मोदी जी की राजनीति में महात्मा गांधी की जो दृष्टि थी देश के लिए वही दिखती है। आप आइए गुजरात में, मैं आपके साथ आऊंगा। मुझे महाराष्ट्र से बताइए ना, भिड़े जी ने जो कहा, जिनको मोदी जी गुरु मानते हैं, वो भिड़े जी के बारे में क्या बोला? मोदी जी ने कुछ बोला? तो नहीं बोला है तो बात इस पर डिस्कशन क्या हम करेंगे? उन्होंने कुछ बताया बात अभी धनंजय जी हो रही है, धनंजय जी चर्चा चल रही है और शरद पवार की मुलाकात के बारे में, भिड़े के निवेदन के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। आनंद जी, ये गोदी पत्रकारिता का इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको मिलेगा? नहीं आया। ओके एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैं किसी को डिफेंड नहीं करने आया हूँ, किसी को ब्लेम नहीं करने आया। मैं उसके तहत बोल रहा हूँ। मैं किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं, उसमें इस तरह से बात नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूँ कि शरद पवार के जो आप उससे जो तलाश रहे हैं कि शरद पवार उस मंच पर थे, उसका क्या क्रिया प्रतिक्रिया है, तो मैं वापस बोल रहा हूँ कि उसका कोई असर नहीं पड़ना है। अडानी की भी बात कर रहे हैं तो अडानी से भी संबंध है। श्रीकांत जी, अनिल भाई, धनंजय जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो पोलिटिकल खीचड़ी आज પોલિટિકલ ખીચડી રંધાઈ છે એને કારણે દેશની અંદર આગામી સમયની અંદર ઘણા મોટા રાજકીય પરિવર્તનો આવે એવી શક્યતાઓ એ શરદ પવાર અને નરેન્દ્ર મોદીની મંચ ઉપર દેખાયેલી ઉષ્મામાં દેખાઈ રહ્યા છે। અજીત પવારે બળવો કર્યો એ વખતે પણ લોકો કહેતા હતા કે એનસીપીમાં શક્ય નથી, પણ એનસીપીમાં શક્ય બની શકે કે ઇન્ડિયાની આ વિકેટ શરદ પવારના રૂપમાં એ પડે तो कोई नवाई पामवा जेवू नहीं लागे। धन्यवाद।